Good morning, class 6. I hope you all are good and please be safe and stay at home. Don't go outside. It's not good to go out. So please be at home. Okay. So today we will study in your English textbook, English literature book, a poem. And the name of the poem is The Heart of the Tree. What? The Heart of the Tree. And so you have to open page number 35 in your English textbook, English literature book. And what is the name of the poet is? Poet's name is Henry Cuyler Bunner. What? Henry Cuyler Bunner. Okay, so this is the name of the poet. So we will continue the poem. So let's do it. Okay. Yes, class. So we'll continue the poem, The Heart of the Tree. Read and enjoy. So first stanza is there are three stanza in the poem. So as you can see, there are three stanza in the poem. So we will read first stanza. What is in the first stanza is, what does he plant who plants a tree? What does he plant who plants a tree? He plants a friend of sun and sky. He plants the flag of breezes free, the shaft of beauty towering high. He plants a home to heaven and nigh. For song and mother, croon of bird, in hushed and happy twilight heard, the treble of heaven's harmony, these things he plants who plants a tree. What does he plant who plants a tree? He plants cool shade and tender rain, and seed and bud of days to be, and years that fade and flush again. He plants the forest's heritage, the harvest of a coming age, the joy that unborn eyes shall see, these things that he plants who plants a tree. Third stanza is, what does he plant who plants a tree? He plants in sap and leaf and wood, in love of home and loyalty, and far past thought of civic good, his blessing on the neighborhood, who in the hollow of his hand holds all the growth of all our land, a nation's growth from sea to sea, stirs in his heart who plants a tree. So this poem is written by Henry Cuyler Bunner. So what is in the poem is, now we will read one by one and I will explain you the meaning of the stanza. Then we will move on to the next stanza. So what is there in the first stanza is, what does he plant who plants a tree? What the poet wants to say is, कि what does he plant who plants a tree? कि वो क्या प्लांट करता है जो प्लांट ट्री प्लांट करता है, ठीक है, वो क्या बो रहा है जो एक पेड़ लगा रहा है, ठीक है. What does he plant who plants a tree? कि वो क्या प्लांट कर रहा है जो एक प्लांट को लगा रहा है, ठीक है. तो वो इंसान क्या कर रहा है. So that the poet wants to ask question. Okay, so that is the question कि what does he plant who plants a tree? कि वो क्या प्लांट कर रहा है जो एक पेड़ लगा रहा है, ठीक है. तो इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा, इसी स्टेंजा में मिलेगा. तो what is the answer given by the poet is, he plants a friend of sun and sky. वो क्या कर रहा है कि the poet calls the tree a friend of the sun and sky. What the poet calls? The poet calls the tree a friend of the sun and sky. Why did he say this? Because trees are good for the environment. जो trees होते हैं वो
इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ट्रीज ही प्लांट्स द, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, ही प्लांट्स द फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, कि वो सन और स्काई का एक फ्रेंड प्लांट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत मदद करते हैं सन और स्काई को, ठीक है, जो प्लांट होते हैं, ठीक है। तो ही प्लांट्स द फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, तो वो सन और स्काई जो सूरज और आसमान है उसका एक दोस्त प्लांट कर रहा है, जो प्लांट कर रहा है ट्री, ठीक है। ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ बीजेस फ्री, और क्या वो प्लांट कर रहा है, एक झंडा प्लांट कर रहा है जो हमें क्या देगा, मतलब यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है, जो उसकी ब्रांचेस होती हैं ट्री की, उसको किससे, फ्लैग से कंपेयर किया गया है, कि जैसे फ्लैग उड़ता है और वो हवा के साथ साथ चलता रहता है, उसी तरीके से जो प्लांट की ब्रांचेस होती हैं वो भी हवा फेंकती हैं, ठीक है। ब्रीजेस फ्री, जो जेंटल एयर होती है वो मुफ्त में हमें मिलती है उससे, ठीक है। तो ही प्लांट्स द फ्लैग ऑफ ब्रीजेस फ्री, द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी टॉवरिंग हाई, और जो पेड़ है वो इतना सुंदर लगता है, देखने में इतना अच्छा लगता है, जो ऊपर की तरफ जाता ही रहता है, तो उसकी जो शाफ्ट ऑफ ब्यूटी है वो बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज शाफ्ट इज द, मीन्स की ऊपर की तरफ जाते हुए लाइट, जिसे हम कह सकते हैं, जो हमें दिखाई देती है, टॉवरिंग हाई, ऊपर की तरफ जाता हुआ। ही प्लांट्स अ होम टू हेवन एन आई, तो वो क्या प्लांट करता है, एक होम, होम किसके लिए, जो एक जन्नत है, एक घर, जो किसके लिए जन्नत है, जो बर्ड्स हैं, ठीक है, जो चिड़िया हैं, जो हमारे घूमती हैं, वो कहाँ पर अपना घर बनाती हैं, तो वो तो उनके लिए एक जन्नत की तरह है, क्या उनका जो घर है जो वो पेड़ों पर बनाती हैं। तो वो जो इंसान है, व्हाट डज ही प्लांट, हु प्लांट्स अ ट्री इज, वो ही प्लांट्स अ होम, वो एक घर प्लांट कर रहा है, ठीक है, टू हेवन एन आई, जो एक स्वर्ग की तरह होगा, फॉर सॉन्ग एंड मदर ट्यून ऑफ बर्ड, तो जिसकी हमें, हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, चिड़ियाओं की जो चहकना होता है वो हम सुनते हैं, फॉर सॉन्ग एंड मदर ट्यून ऑफ बर्ड, जो उनकी आवाज़ होती है, इन हर्श एंड हैप्पी ट्विलाइट हर्ट, तो उनकी जो आवाज़ होती है, उनका जो संगीत होता है, जो गीत होता है, वो हम उनकी खुशी से पता कर लेते हैं कि कितनी खुश हैं वो चिड़िया। तो दी द ट्रैवल ऑफ हैवल्स हार्मनी, तो इसी से शांति बनी रहती है सब जगह, ठीक है। दीज थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान एक ट्री प्लांट करता है, तो वो इतनी सारी चीज़ों को, मतलब जो पोइट है वो ये कहना चाह रहा है कि जो एक बंदा सिर्फ क्या कर रहा है, एक प्लांट कर रहा है ट्री, एक सैपलिंग डाल रहा है, वो इतनी सारी चीज़ें दे रहा है नेचर को, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, जैसे कि उसने बताया कि ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई, वो एक फ्रेंड दे रहा है सन और स्काई को, क्योंकि वो सेव करता है हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है, बिकॉज ट्रीज आर गुड फॉर द इन्वायरमेंट, बिकॉज ट्रीज इंक्रीज फ्रेश एयर, ठीक है, ट्रीज क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट में फ्रेश एयर होती है वो लाते हैं, ठीक है, तो वो हमें हवा देते हैं, और द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी, इतने सुंदर लगते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। ही प्लांट्स अ होम टू हेवन एंड आई, वो घर भी देते हैं, चिड़िया वगैरह का घोंसला जो होता है वो कहाँ पे बनता है, पेड़ों पे बनता है, ठीक है। तो फॉर सॉन्ग एंड मदर ट्यून ऑफ बर्ड, और जो उनके गाने होते हैं, जो चहकना होता है चिड़ियों का, उससे हम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और जिससे हमें उन चिड़िया का, जो बर्ड्स हैं उनका खुशी दिखती है उससे, ठीक है, तो वो हम उनकी चहकने में सुन सकते हैं, जो वो चहकती हैं, ठीक है, ट्विटर। Now move on to the next stanza. So what does he plant who plants a tree? तो वो क्या प्लांट करता है, जो एक प्लांट को लगाता है, ठीक है, एक ट्री लगाता है, वो क्या लगाता है, ठीक है। तो व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री, तो वो क्या बोता है जो ट्री लगा रहा है, ठीक है। तो ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन, क्या वो लगा रहा है,
वो क्या प्लांट कर रहा है? कूल शेड। हमें जो प्लांट से क्या मिलती है, पेड़ों से क्या मिलती है? कूल शेड, ठंडी ठंडी छाया मिलती है, ठंडी हवा मिलती है। एंड टेंडर रेन, जो बारिश का कारण है वो भी क्या है? वो भी पेड़ ही है, ठीक है। तो एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी, और हमें ये क्या देते हैं आज? बीज, बीज भी देते हैं जो हम, एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लश अगेन, कि वो बीज हम बोते हैं और फिर वो फ्लश होते जाते हैं, मतलब ईयर्स और ईयर्स निकलते जाते हैं और फिर हम उनको लगाते हैं। और ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज, और वो एक फॉरेस्ट हेरिटेज भी बनाता है, जैसे कि उसने एक प्लांट लगाया, किसी और ने वहाँ पर दूसरा प्लांट लगा दिया, तो वो वहाँ पर एक फॉरेस्ट हेरिटेज, मतलब जंगल, या फिर कह सकते हैं जंगल की भी नींव रखता है, ठीक है। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज, जहाँ पे बहुत सारी जो हेरिटेज, जो जहाँ पे बहुत सारी चीज, विरासत बोलते हैं जिसे हम, हेरिटेज क्या होता है? फॉर विरासत, ठीक है। तो वो एक फॉरेस्ट हेरिटेज की भी शुरुआत करता है, जो प्लांट करता है ट्री। तो द हार्वेस्ट ऑफ अ कमिंग एज, जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली एज है, वो भी इन प्लांट्स को देख सके। आज हमने एक सैपलिंग बोई है, लेकिन कल जाकर वो क्या हो जाएगी, जब जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, दे ऑल्सो कैन would see those that heritage. Okay, so he plants the forest heritage, the harvest of a coming age, जो हार्वेस्ट हमारी कमिंग एज, जो भी आने वाली जनरेशन है उसके लिए, द जॉय दैट अनबॉर्न आईज शैल सी, कि जो अनबॉर्न आईज हैं, जो अभी पैदा भी नहीं हुई है, वो आंखें इन इस खुशी को देख सकें, जो ये हमारी विरासत है, जो हमें पेड़ पौधों के रूप में मिली है, जो हमारे जो ओल्डेस्ट जनरेशन थी उसने हमें दी है, ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने हमें दी है। तो दीज थिंग्स ही प्लांट्स, हु प्लांट्स अ ट्री, प्लांट अ ट्री। तो ये वो चीज़ें हैं जो वो ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री, कि वो प्लांट करता है जो एक पेड़ लगाता है। ऑलराइट, so move on to the next stanza. What does he plant who plants a tree? Again, this is the question. What does he plant who plants a tree? कि वो क्या प्लांट करता है जो एक ट्री प्लांट करता है। प्लांट मीन्स लगाना भी होता है, आपको पता होगा, प्लांट मीन्स लगाना भी होता है, और प्लांट मीन्स पेड़ भी होते हैं। तो व्हाट डज ही प्लांट, उसने क्या बोया वहाँ पर? हु प्लांट्स अ ट्री, जिसने वहाँ पे पेड़ लगाया, ठीक है। उसने और क्या प्लांट किया, मतलब वो सिर्फ पेड़ लगाने के अलावा और क्या क्या वहाँ पर प्लांट कर रहा है। तो आंसर हमें इन्हीं पैराज में मिल रहा है। मीन्स जो पोइट है जस्ट वांट टू आस्क द क्वेश्चन व्हाट डज ही प्लांट टू प्लांट द ट्री, एंड ऑल्सो गिविंग द आंसर हिमसेल्फ। ओके, सो ही प्लांट्स इन सैप एंड लीफ एंड वुड। व्हाट ही प्लांट्स इन सैप एंड लीफ एंड वुड, कि जो वो प्लांट कर रहा है वो एक बीज प्लांट कर रहा है, एक छोटा सा सैपलिंग प्लांट कर रहा है, और फिर वो लीफ उसके पास, मीन्स लीफ आती है उसमें, और फिर वुड आती है, मीन्स लकड़ी आती है। तो इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी, और वो बहुत ही प्यार से उस घर को सजाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही ईमानदारी से। और एंड फारकास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड, और वो सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देख रहा है, उससे वो सिविक गुड मीन्स सबका फ़ायदा देख रहा है, सबके अच्छे के लिए वो ऐसा कर रहा है। तो हिज ब्लेसिंग ऑन द नेबरहुड, और वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो सबके लिए ऐसा सोच रहा है। नेबरहुड मीन्स हमारे जो भी पड़ोसी हैं उनके लिए भी वो एक आशीर्वाद की तरह है। हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड, तो उसके उसके पास कुछ भी नहीं है, होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ आवर लैंड, लेकिन उसने क्या किया है, हमारी ज़मीन को और ग्रोथ दिया है, विकास उसका किया है, ठीक है, उसे और ज़्यादा ग्रोथ किया है, ठीक है। होल्ड्स ऑल द ग्रोथ, तो वो हमारी लैंड जो है, हमारी जो धरती है, उसकी ग्रोथ को अपने हाथों में उसने पकड़ा है। अ नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी, तो एक जो नेशन की ग्रोथ है, एक देश की जो, राष्ट्र की का जो विकास है, वो सी टू सी, मतलब एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक। चर्च इन हिज हार्ट हु प्लांट्स द ट्री, तो वो किसके अंदर चल रहा है, किसके हार्ट के अंदर चल रहा है, जिसने वो प्लांट को वहाँ पर प्लांट किया है, जिसने एक पौधा लगाया है, जिसने एक पेड़ लगाया है।
तो अ नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी, तो एक नेशन की जो, एक राष्ट्र का जो विकास है वो यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब जितना भी है सी टू सी, समुद्र से लेके दूसरे छोर तक, तो वो किसके अंदर, किसके हार्ट के अंदर चल रहा है, स्टर्स मीन्स घूमना, स्टर कर रहा है। तो वो प्लांट का ट्री, जिसने ये प्लांट, जिसने ट्री प्लांट किया है। ऑलराइट, so this is the poem written by Henry Cuyler Bunner. So in this poem, what he had explained is, when a man plants a sapling, कि जो इंसान है जब वो sapling उगाता है, it is possible that the children, कि ये possible है, कि मुमकिन है कि जो बच्चे और जो people हैं, जो लोग हैं, who will benefit from it, जो भी उससे फ़ायदा उठाएंगे, have not yet been born, कि वो अभी पैदा तो नहीं हुए हैं, लेकिन in the future, so the by the time, लेकिन by the time the sapling grows to a tree, लेकिन जो सैपलिंग है, जो पौधा आज हमने लगाया है, वो एक ट्री के रूप में बदलेगा और पेड़ बन जाएगा। दोज हु आर नॉट बोर्न टुडे, जो आज पैदा नहीं हुए हैं, विल हैव द जॉय ऑफ सीइंग एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, तो वो उन पेड़ पौधों को देख सकेंगे और उनसे जो भी बेनिफिट है, जो भी उनसे फायदा है, वो उससे उठा सकेंगे। ऑलराइट, so this is the poem written by Henry Cuyler Bunner. Now I am going to give you the rhyming words of these poems. So what are the rhyming words given in this poem? So you have to do the rhyming words in your notebook. So tree and free. So this is the first rhyming word, tree and free. Sky and high. The sound of these words are same, so no need to see the spelling, or you can use this high or anai. Okay, high or anai also you can use if you don't want to take sky, but sky, high, anai, all are the rhyming words. Okay, so if you want to if you want to take high, then you can take anai, or you can take sky or high. Okay, or no need to worry about that. Okay, now bird, herd. Okay, next one is rain, again, heritage, age. Okay, next one is wood, wood and good. Okay, hand and land. Okay, so these are the rhyming words which I have given you from the poem itself. Now, what you have to do is you have to do the word meaning. So I will explain those meanings. So these are the meanings. I have told you the meaning of shaft, कि एक पतली सी vertical passage for light, मतलब एक जगह होती है जिसमें से light और air जो हवा होती है वो निकल सके, ठीक है। तो vertical passage for light और air. Anai means near, पास में. Treble means ऊंचा, high piping sound. And flush means sudden blossoming out. कुछ अचानक से ब्लॉसम हुआ, मतलब खिला, ठीक है। सैप द जूसेस ऑफ प्लांट, जो प्लांट के जूसेस होते हैं उसे हम सैप बोलते हैं। ओके, सो answer the following questions only. I will give you the answers tomorrow of this poem. So today we will do this question. Take the correct option. In this poem, the poet mainly conveys, कि इस पोएम में जो पोइट है वो क्या कन्वे कर रहा है। So what he is conveying is that a tree takes years to grow, कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक पेड़ को बढ़ने में बहुत सारे साल लग जाते हैं। So no, it's not he conveys here. It's not correct. So next one is that planting a tree is a difficult task. What he is conveying? He is conveying that to plant a tree is a very difficult task. So it's not कि एक ट्री को प्लांट करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, तो ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट वन इज सी द बेनिफिट्स ऑफ प्लांटिंग अ ट्री, तो क्या वो बेनिफिट्स बता रहा है एक ट्री को प्लांट करने के। तो दिस इज द राइट आंसर, यस ही इज telling us the benefits of planting a
ट्री की किस तरीके से एक ट्री को जब हम प्लांट करते हैं तो उसके क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं, वो किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुंचाता है और हमें फ़ायदा मिलता है, उससे बेनिफिट्स मिलते हैं. ऑलराइट. So next one is how trees are used by man. So no need because we have got the answer C. C is the correct answer. All right. So move on to the. So this work you have to do in your notebook. First of all, you are going to do is I've told you that you have to write the poem. Means you have to write two stanzas of the poem. Means sorry, you have to write one stanza of the poem, just one stanza of the poem, and then you have to write the name of the poet, and after that you have to write the rhyming words of the poem, and after that you're going to write is word meaning. Okay, so left side of the page you have to write word, and right of the page you have to write their meaning. All right. So if you have any queries related to this topic or any question you want to ask me, you can ask me on class WhatsApp group so that I will answer your queries. Okay. So thank you for today.